Hello everyone. In this session, we try to see some transformation numerical problems. So we try to solve some numericals based on the transformation matrices, right? So previously we have seen some problems. Okay, we have tried to solve some problems based on the translation, rotation, scaling, shear, and so on, right? So there are different translation operations in a 2 dimension as well as in a 3 dimensional. Okay, so now what we can do is we will try to solve some more problems and you will take some problems for your homework also, right? So this is the first problem that we will discuss for today's session, that is translate the polygon with coordinates. Given coordinates are the a 3 comma 6, b, c, okay, by 2 units in x and 3 units in a y direction. Now the important thing is that you are given with the 3 points, okay, for the polygon. So polygon must be a triangle, so it is implicit in nature. Okay, the polygon must be a triangle. So we try to we try to draw this polygon with given points. Okay, and the points are a 3 comma 6. The first point is a 3 comma 6, second point is b. Okay, the second point is b 8 comma 11 and c 11 comma 3. Okay, so 8 comma 11 and c is 11 comma 3. These are the 3 points. You are given with these 3 points. Now the thing is that if you consider xy coordinate system, okay, and on this xy coordinate system, if you consider the point representation, then this is your origin 0 comma 0. Okay, origin, that is 0 comma 0, you can characterize by o also. Now you are having point a 3 comma 6. So a 3 comma 6 must be, the point must be, so it can be a 3 and it can be a 6. Okay, so a 3 comma 6, this is your point a. Okay, right. Then point b is 8 comma 11. So consider that this is point, this is at 8 and this is at, consider that this is at 11. So it is 8 comma 11. So this is the point b 8 comma 11. Okay, and the third point is a point c 11 comma 3. So it must be a 11 distance, unit distance. Okay, and then third one is 11 comma 3. So 3 must be at here. Okay, so this is your point c. So if you connect these 3 points, this is your triangle. Okay, so coordinates of point a are a 3 comma 6, then 8 b are 8 comma 11 and c are 11 comma 3. This is the triangle, this is a polygon which is given to you. Now the next part is that you want to translate this polygon. Okay, this translate this polygon, the translation means tx by 2 units, okay, with respect to x direction. Okay, hence it is a tx, and you have to translate this polygon with respect to y axis by 3 units. So ty equal to 3 units. So tx equal to 2 units and ty equal to 3 units. This is given to you. Okay, now you can use the translation algorithms and translation matrices to solve this particular problem, right? So what you want to do is, okay, you have to translate each and every point, okay, each and every point of this polygon. So this polygon consists of 3 points. So every point, that is all 3 points, by 2 units, okay, in the x direction and by 3 units in the y direction. So your point A should be translated by 2 units in the x direction and by 3 units in the y direction. Similarly, it is applicable for a point B. It is also applicable for the point C. So you have to consider this Tx and Ty parameters. That is a translation parameters. Okay, we have seen it in our discussion about the translation matrices. Okay, previously, what is translation parameters? Right, so if you observe this particular representation, then x dash equal to x plus tx, right? So x dash means new coordinates, new x coordinates, it's equal to x plus original x coordinate plus translation value. So new coordinates, how you can identify these new coordinates? Okay, so if for a point a, let us suppose for a point a you want to find out x coordinate, new x coordinate, then x new must be okay, x old plus tx. Similarly, for point A, new y coordinate must be y new equal to y old plus ty. Okay, so same thing is applicable for point B, it is also applicable for point C.
Okay, so you can generate a new x and y coordinates by using old xy coordinates and applying the translation parameters. So in this case, translation parameter is 2, and for a tx is 2, and for a ty it is 3. Okay, so it is just an addition, right? So initially for point A, values are 3 comma 6, right? Okay, the coordinates are the 3, I think it is 3 comma 6, then it must be 3 plus 2, okay, and 6 plus 3. Okay, why it is 3 plus 2? Because x old is 3 and tx is 2. And why it is 6 plus 3? Because y old is 6 and ty is 3. Okay, so you will get a new coordinates as 5 comma 9 for the point A. Similarly, same logic you can apply for point B, you can apply for point C. Same thing is given here in this particular solution also. Okay, so for a point A, 3 comma 6, okay, new x dash and y dash are nothing but new coordinates. Either you can represent by x dash y dash or x new y new. आप कोई भी तरीके से इसे रिप्रेजेंट कर सकते हो. कुछ लोग उसे एक्स डैश वाई डैश बोलते हैं, आप उसे एक्स न्यू वाई न्यू भी बोल सकते हो. ओके, इट इज़ अप टू यू. यदि आप एक्स न्यू वाई न्यू बोल रहे हो तो पुराने वाले एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स को आप क्या बोलोगे? एक्स ओल्ड वाई ओल्ड बोलोगे. ओके, एक्स डैश यूज़ कर लो तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप एक्स वाई यूज़ कर सकते हो. सो इट इज़ जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन. आपको किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है ये आपके ऊपर है. ओके, सो फॉर अ पॉइंट ए यू कैन फाइंड आउट द न्यू xy, okay, that is x dash y dash. Similarly for point B, again उसके लिए same procedure, 8 plus 2 and 11 plus 3, and for point C that is 11 plus 2 and 3 plus 3. तो आपको तीनों कोऑर्डिनेट्स तीनों पॉइंट्स के नए एक्स वाई मिल गए. पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, तीनों के नए एक्स वाई आ गए, मतलब न्यू कोऑर्डिनेट्स मिल गए. उसके हिसाब से आप क्या करोगे? इस ट्रायंगल को ड्रॉ करने की कोशिश करोगे. सो वंस यू ऑब्टेन ऑल द पॉइंट्स, okay, all the coordinates of all the points, you can try to draw the object again, okay, by using a dash, b dash and c dash. That it means that new coordinates of a b c. ओके, नए आपको कोऑर्डिनेट्स मिल गया, मतलब हमने क्या किया? उसे ए डैश, बी डैश, सी डैश बोला, और उसके हिसाब से हमने ऑब्जेक्ट को, मतलब पॉलीगॉन को, और इस केस में ये ट्रायंगल है, उसे ड्रॉ किया. ओके, सो दिस इज शोन इन दिस पर्टिकुलर डायग्राम. ओके, यू कैन क्लियरली ऑब्जर्व इट. सो द प्रॉब्लम इज वेरी इजी. Okay, this problem is very easy. If you observe this problem, okay, you can easily solve these things. Okay, as far as translation is considered. Okay, you can solve the same problem by using a translation matrices also. It is possible. Okay, but at this particular level there is no need to use this translation matrices, because the idea is very easy. You can directly add it. Okay, but for other transformations like rotation, scaling, shear, okay, for other transformation you have to use the translation matrices. तो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिसेस. तो ट्रांसलेशन एक टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है. तो ट्रांसलेशन यदि करना है तो आपको मैट्रिसेस नहीं यूज़ किया तो भी चलता है, क्योंकि बहुत इजी है, ये एडिशन ही करना है आपको. ओके, ऐड करते जाना है. लेकिन यदि हम रोटेशन, शेयर, स्केलिंग का यदि हम सोचेंगे, उसके बारे में सोचेंगे, उन ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में सोचेंगे, तो वहाँ पर हमें मल्टीप्लिकेशन की ज़रूरत होती है. वहाँ पर हमें उनके रिस्पेक्टिव मैट्रिसेस की ज़रूरत होती है. रोटेशन कराना है तो रोटेशन वाला मैट्रिसेस चाहिए, शेयरिंग के लिए शेयरिंग का चाहिए, स्केलिंग के लिए स्केलिंग का मैट्रिसेस चाहिए, एंड अकॉर्डिंगली वी हैव टू यूज इट एंड देन वी हैव टू मल्टीप्लाई इट. दैट इज़ अ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन. फॉर अ ट्रांसलेशन ऑपरेशन देर इज़ नो नीड टू यूज़ इट, यू कैन डायरेक्टली ऐड इट. ठीक है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन अलग चीज़ है और ट्रांसलेशन अलग चीज़ है. ट्रांसलेशन ये एक टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन है. ट्रांसफॉर्मेशन अलग अलग टाइप के हो सकते हैं. ट्रांसलेशन हो सकता है एक टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन, रोटेशन हो सकता है, स्केलिंग हो सकता है, शेयर हो सकता है. ये सारे ट्रांसफॉर्मेशन के टाइप्स है, उसमें से ट्रांसलेशन एक टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन है. सो ट्रांसफॉर्मेशन इज अनदर वर्ड एंड ट्रांसलेशन इज वन टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन that we are carrying out, right? Okay, so we have seen this particular numerical problem. You can identify more numerical problems from your previous question papers and try to solve it. आपको अभी प्रैक्टिस ही करना है. कंसेप्चुअल पॉइंट्स हमने बहुत कुछ देखे हैं, केवल कुछ पॉइंट्स रिमेनिंग है जो हम आगे आने वाले समय में देखेंगे. लेकिन आपको न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम की प्रैक्टिस करनी ही होगी.
मैंने कितने भी बार आपको सॉल्व करके दिया उसका कुछ मतलब नहीं है, जब तक आप खुद सॉल्व नहीं करते हो उसका कुछ फ़ायदा ही नहीं होने वाला है। तो आपके पास अब पेपर सोल्यूशन रेडी है, गूगल क्लासरूम पर अवेलेबल भी है, अपलोड किया हुआ है, आप MSPTV के साइट से ही डाउनलोड कर सकते हो, अदरवाइज गूगल क्लासरूम पर भी दिया गया है। आप उसका यूज़ करके आप घर पर बैठ के जो भी प्रॉब्लम्स आपको आते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, वो सॉल्व करने की कोशिश करोगे। सॉल्व करोगे तब भी डिफ़िकल्टी आएगी तो आप पूछ सकते हो ऑनलाइन सेशंस में, अदरवाइज इट इज़ नॉट पॉसिबल टू आस्क। ओके, आपको डिफ़िकल्टी आएगी ही नहीं जब तक आप देखते ही नहीं हो प्रॉब्लम्स के साथ, तो डिफ़िकल्टी आएगी ही नहीं। और आप प्रॉब्लम को स्किप करके पेपर सॉल्व नहीं कर सकते हो, सारा पेपर थियोरेटिकल नहीं आता है, बहुत कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आते हैं। यदि आपको समझ में आए तो बहुत ईजी है, आपको डायरेक्टली फुल मार्क्स मिल जाएंगे। थियोरी में फुल मार्क्स नहीं मिलते, प्रॉब्लम्स में मिलते हैं। ओके, सो इट इज़ पॉसिबल, क्वाइट पॉसिबल। ओके, और लास्ट टाइम का ग्राफिक्स का रिजल्ट कंपैरेटिवली ख़राब था। ओके, जो मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ कोरोना के, अब इस समय जो हमने MCQ बेस्ड एग्जामिनेशन लिया इसकी बात नहीं चल रही है ये। ओके, मैं ये बात कर रहा हूँ जो हमारे थियोरी पेपर्स रहते थे ऑफलाइन मोड में। ओके, जहाँ पर आपकी एबिलिटीज़ अच्छी तरह से टेस्ट होती थी। MCQ में इतनी सारी एबिलिटी टेस्ट नहीं होती है। ओके, पता ही नहीं चलता है आप कहाँ पर बैठ के ये सॉल्व कर रहे हो, शायद आप कोई कॉपिंग भी कर रहे हो। ओके, शायद आप इंटरनेट की फैसिलिटी का भी यूज़ कर रहे हो, पता नहीं चलता है। मेरा किसी के ऊपर ये डाउट नहीं है, आरोप नहीं है, लेकिन हो सकता है प्रॉबेबली। ठीक है, लेकिन थियोरी का एग्जाम जब देते हो तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने पड़ते हैं, और प्रॉब्लम यदि सॉल्व करने पड़ते हैं हमें तो ये क्वाइट डिफिकल्ट होता है। तो लास्ट टाइम का जो रिजल्ट देखा है मैंने, रेगुलर रिजल्ट, उसमें कंप्यूटर ग्राफिक्स का रिजल्ट बहुत ही ख़राब लग रहा था मुझे, कंपेरेटिवली ख़राब लग रहा था। Okay, approximately 35 students who is having a backlogs, okay, in a computer graphics. It should not be there. ये कंप्यूटर ग्राफिक्स से भी डेटा स्ट्रक्चर डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, उसमें बैकलॉग नहीं थे स्टूडेंट्स के। ओके, लेकिन कंप्यूटर ग्राफिक्स में दिखाई दे। ओके, ये केवल टीचर के ऊपर ब्लेम करने से नहीं होता है, मतलब इसका मतलब ये है हमने प्रैक्टिस नहीं की थी, मतलब स्टूडेंट्स ने प्रैक्टिस नहीं की थी। ओके, प्रैक्टिस ना होने के कारण न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाए। ओके, इसकी वजह से पेपर डिफिकल्ट गया। ठीक है, जो भी पास्ट में हुआ वो ठीक है, हम यहाँ पर इम्प्रोवाइजेशन कर सकते हैं। ओके, इम्प्रोवाइजेशन इज इन आवर हैंड्स, इट इज़ पॉसिबल एंड इट इज़ क्वाइट पॉसिबल। ओके, वी आर हैविंग अ लॉन्ग टाइम फॉर अ फाइनल एग्जामिनेशन। अभी हमारा UT भी चालू होने वाला है, लेकिन हमारा फाइनल एग्जामिनेशन के लिए बहुत टाइम है। तब तक हम अच्छी तरह से काम कर सकते हैं, बहुत टाइम अवेलेबल भी है। ओके, और रिकॉर्डेड सेशन भी अवेलेबल है, मटेरियल अवेलेबल है, आप यूज़ कर सकते हो। ओके, साथ साथ आपके पेपर सोल्यूशन भी अवेलेबल है, उसका भी यूज़ कर सकते हो, बट ट्राई टू सॉल्व इट। और आपको यदि डिफ़िकल्टी आ रही है तो ऑनलाइन सेशन में आप डिफ़िकल्टी लेके आ जाओ, उस समय हम डिस्कस करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, जब तक आप देखते नहीं हो तब तक डिफ़िकल्टी नहीं आएगी, और डिफ़िकल्टी नहीं आएगी तो हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे। ओके, ये वो सिंगल हैंड कम्युनिकेशन हो गया, मतलब वन साइड कम्युनिकेशन होते रहेगा, उसका कुछ मतलब नहीं है। ऑनलाइन सेशन इफेक्टिव तभी होगा जब आप कम्युनिकेट कर पाओगे, अदरवाइज रिकॉर्डिंग करने में क्या दिक्कत है। रिकॉर्डिंग करना बहुत इच्छा है मेरी, टाइम के हिसाब से मैं अच्छी तरह से रिकॉर्डिंग करके आपको भेज सकता हूँ। ऑनलाइन सेशन में जूम पर रिकॉर्डिंग करना पड़ता है। ओके, वो ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है मुझे, और डिफिकल्ट होता भी है। थोड़ा भी लाइन में कनेक्टिविटी में कुछ प्रॉब्लम आ गई तो रिकॉर्डिंग अच्छी तरह से नहीं हो पाता। ओके, तो बेटर क्या है, ये रिकॉर्डिंग बेटर है उससे, लेकिन हमें केवल वन साइड कम्युनिकेशन नहीं करना है, इसलिए हम ऑनलाइन सेशन भी ले रहे हैं। ओके, बीच बीच में। ओके, सो हमने तो टॉपिक तो बहुत सारे डिस्कस कर लिए, सब टॉपिक्स भी डिस्कस कर लिए, कुछ टॉपिक्स रिमेनिंग है। ओके, वो हमारे पास बहुत टाइम है, अभी 1 मंथ है। ओके, तो हमारे पास कुछ टॉपिक्स जो रिमेनिंग है और कुछ प्रैक्टिकल सेशन जो रिक्वायर्ड है वो हम लेंगे ऑनलाइन मोड पे। अदरवाइज ओके, आपको स्टडी करना है और आपको पूछना है जो भी डाउट्स आ रहे हैं। ओके, थैंक यू। ओके, सॉरी, आई विल नॉट क्लोज दिस सेशन, वाइंड अप दिस सेशन, आई विल टेक वन मोर प्रॉब्लम, सॉरी। So I will take it one more problem, okay, from your previous question paper only, and the problem is, आई थिंक ये प्रॉब्लम मैंने डिस्कस किया है इसके पहले। ठीक है, तो मैं दूसरा प्रॉब्लम डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ। वी हैव सीन दिस प्रॉब्लम प्रीवियसली इन प्रीवियस सेशंस ओनली। Okay, so this is one problem.
ओके वी हैवंट डिस्कस इट आई थिंक. ओके सो रोटेट अ ट्रायंगल डिफाइंड बाय, और आपको यदि नए प्रॉब्लम्स मिल रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स में आपको पता नहीं चला है कैसे सॉल्व किया है, तो आप लेके आ जाओ, वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. ऐसे नहीं है केवल मैं ही प्रॉब्लम देते जाऊंगा, वही सॉल्व करके दिखाऊंगा. आप नए प्रॉब्लम लेके आओ, पॉसिबल है. ओके आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय, हम देखेंगे कैसे हम सॉल्व कर पाएंगे. रोटेट अ ट्रायंगल डिफाइंड बाय ए बी एंड सी बाय 90 डिग्री अबाउट ओरिजिन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ठीक है, तो आपको ए बी सी दिया हुआ है, मतलब आपको कोऑर्डिनेट्स दिए हैं ट्रायंगल के, पॉलीगॉन के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं. ओके मतलब एक्स ए बी सी पॉइंट्स दिए हुए हैं, और आपको अब क्या करना है, उसे रोटेट करना है. ट्रांसलेशन नहीं है अभी, रोटेशन है. तो रोटेशन करने के लिए आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना ही होगा, उसके बिना आप रोटेशन कर ही नहीं पाओगे. ठीक है, अबाउट बाय 90 डिग्री अबाउट ओरिजिन. तो अबाउट ओरिजिन बोला है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्टली हम रोटेशन कर पाएंगे. इसके पहले मैंने एक प्रॉब्लम डिस्कस की थी जहाँ पर हम अबाउट ओरिजिन नहीं कर रहे थे, हम अबाउट सम अदर पॉइंट्स 1,1,1 2,3 इस पॉइंट पर हम क्या कर रहे थे, रोटेशन कर रहे थे. वो ज़्यादा डिफिकल्ट था. ओके वो कैसे किया जाता है वो मैंने उस सेशन में बताया हुआ भी है. ओके तो आप जाके देख लो, कुछ डाउट होगा तो पूछ लो मुझे. यहाँ पर डायरेक्टली पूछा है कि अबाउट ओरिजिन, तो अबाउट ओरिजिन पूछा है तो डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं. तो फर्स्ट मैट्रिसेस क्या होगा, जो हमें पॉइंट्स दिए हैं उसके हिसाब से मैट्रिसेस बनाएंगे. ओके तो फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, एक 0 0. सो 0 0 एंड 1 1 क्या है यहाँ पर, 1 क्या है, 1 ये स्केलिंग 1 ये अपना नॉर्मलाइजेशन वेक्टर की वैल्यू है. ओके अपने नॉर्मलाइजेशन वेक्टर की वैल्यू है. ठीक है, सिमिलरली पॉइंट बी क्या है 6,0, तो 6 0 एंड 1. ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है सी, दैट इज 3,3, दैट इज 3 3 एंड 1. ठीक है, तो हमेशा लास्ट कॉलम जो है वो 1 1 1 रहता है. क्यों 1 1 1 रहता है, वो नॉर्मल वेक्टर के लिए करते हैं. ठीक है, उसके बारे में हमने पहले डिस्कशन किया भी है. ठीक ओके, और आपको और डिटेल डिस्कशन की उसमें ज़रूरत नहीं है. ठीक है, जो एनिमेशन में काम कर रहे हैं उन्हें पता होना चाहिए नॉर्मल वेक्टर कैसे होता है, कैसे बनता है, क्यों लिखते हैं. ओके ना, दिस इज यूर ओरिजिनल ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स और पॉलीगॉन मैट्रिक्स. ये पॉलीगॉन के कोऑर्डिनेट्स लिखे हैं हमने डायरेक्टली. मल्टीप्लाई बाय किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, रोटेशन मैट्राइसिस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. तो रोटेशन मैट्राइसिस क्या है हमारा, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, साइन अल्फा कॉस अल्फा 0 0 0 1. ये फिक्स है, ये बदलने वाला नहीं है. केवल आपको क्या करना है, आपको केवल अल्फ़ा की जगह पर जो एंगल की वैल्यू है वो डालनी है. तो अल्फ़ा 90 डिग्री डालना है आपको, क्योंकि 90 डिग्री दिया गया है. तो कॉस 90 क्या आएगा, 0 आएगा. साइन 90 क्या आएगा, 1 आएगा. साइन 90 क्या आएगा, 1 आएगा. ओके बाद में कॉस 90 क्या आएगा, अगेन 0 आएगा. ओके सो यू हैव टू पुट ऑल द वैल्यूज ओके इन द मैट्रिक्स फॉर्मेट ओके करेक्टली एंड देन मल्टीप्लाई इट. Once you multiply, you will get the final answer. You will get a final answer. That final answer represent coordinates of the object matrices. तो पॉलीगॉन के नए कोऑर्डिनेट्स कौन देगा, ये फाइनल मैट्रिसेस देगा. क्या है मैट्रिसेस की वैल्यू 0 0 1. तो 0 0 1 मतलब क्या, पहला पॉइंट कहाँ होगा, 0 पे ही होगा, 0 0 पे होगा. 1 को तो हमें नॉर्मल वेक्टर है छोड़ देना है. 0 0 क्या होगा, ए का कोऑर्डिनेट्स होगा. तो ए जहाँ है वहीं पर रहेगा. नया ए डैश क्या बनेगा, 0 0 ही बनेगा. ठीक है, बाद में हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है 0 6. किसके लिए है ये, बी के लिए, मतलब नया बी डैश बनेगा हमारा. 0 6 पे आ गया बी डैश, हमने रिप्रेजेंट कर लिया. ओके और तीसरा पार्ट किसका है, पॉइंट सी का है. तो सी के लिए क्या आया -3 3, मतलब क्या सी के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे -3 एंड 3. तो सी डैश आएगा. ओके सो इनिशियली ए बी सी था, अब क्या बना ए डैश बी डैश सी डैश. सो इनिशियल ट्रायंगल इज रोटेटेड बाय 90 डिग्री. और आपको ये ऑब्जर्वेशन से भी पता चलता है, इनिशियल ट्रायंगल जो भी आपको दिया था उसे यदि 90 डिग्री रोटेशन किया तो क्या होगा, एक क्वाड्रेंट का रोटेशन होगा. वो रोटेशन हुआ और सी पॉइंट बाहर गया, ए डैश पॉइंट वही रहा, बी डैश केवल चेंज हुआ. तो आप यदि देखो भी इस ऑब्जर्वेशन भी करोगे तो भी आपको ये पता चल जाएगा. ओके एंड सेम आंसर वी विल गेट बाय यूजिंग दिस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन. ओके सो आई थिंक हाउ टू परफॉर्म अ रोटेशन इज क्लियर टू यू. जनरली वही प्रॉब्लम रिपीट करते हैं या उस प्रॉब्लम में से कुछ कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू बदल के देते हैं आपको. ओके तो जनरली रोटेशन आएगा फिर से, तो भी रोटेशन अबाउट अ ट्रायंगल ही आएगा, लेकिन केवल कोऑर्डिनेट्स चेंज करके देंगे. तो आपको उसके हिसाब से क्या करना है, कोऑर्डिनेट्स चेंज करके आपको फाइनल आंसर निकालना है और उसके हिसाब से ड्रॉ करना है. नाउ वन मोर थिंग इज़ दैट ओके यहाँ पर उस ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करना भी उतना ज़रूरी है.
पेपर सॉल्यूशन में जैसे दिया है वैसे ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करना भी ज़रूरी है। तो स्टूडेंट को मल्टीप्लाई करने आना ही चाहिए, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन फाइनल आंसर तो करेक्ट आना ही चाहिए, उसके हिसाब से जो पॉलीगॉन है उसे ड्रॉ करने भी आना चाहिए। सो फॉर ड्राइंग के लिए 1 मार्क रखा है, ओके, और बाकी चीज़ों के लिए 3 मार्क्स रखे। तो दिस इज जस्ट अ बाइफर्केशन ऑफ योर मार्क्स। ओके, सो बहुत बच्चे क्या करते हैं कि फाइनल रिजल्ट तो निकालते हैं लेकिन ऑब्जेक्ट ड्रॉ ही नहीं करते, तो उसके लिए वो लूज़ करते हो मार्क्स। लेकिन ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना बहुत ईजी है, आपको केवल कोऑर्डिनेट्स को मैप करके ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना है। ओके, इन 8th स्टैंडर्ड ओनली यू आर हैविंग दिस पर्टिकुलर नॉलेज हाउ टू ड्रॉ पर्टिकुलर पॉइंट इन XY कोऑर्डिनेट सिस्टम। सबने 10वीं पास की है तो सबको पता है कि इस तरीके से पॉइंट को कोऑर्डिनेट सिस्टम पर दिखाते हैं। ठीक है, तो ये यदि आपको पता है तो आप लूज़ मत कर कीजिएगा मार्क्स, वो दिखाओ, ओके, अच्छी तरह से ड्रॉ करके दिखाओ। ठीक है, तो आप पेन से भी ड्रॉ कर सकते हो लेकिन आपको ड्रॉ करना मस्ट है। Okay, so remember this particular thing. So here we close this session. Okay, we have discussed 2 problems. Okay, we have already discussed some more problems, numerical problems. Okay, try to solve some more problems, okay, as and when possible when you are at home, and you can get back to me if you are facing any difficulty. Thank you for watching this session.